architecture, we move after completing Revit architecture, we move to Revit structure, in which in first class we learned about creating basic elements of the building like structural component, column, beam, slab, footings, how to apply after that how to apply reinforcement in structural member, and then we created a steel structure in which we create a uh, warehouse. After that we applied connect different types of connection in warehouse, and after after we created a composite structure, that is RCC plus steel structure. And after that sir taught us about how to make a portfolio in Canva. So honestly, I was not aware of the Canva earlier. First time I used Canva and learned how to make creative portfolio, so that my work will be represented in an attractive manner, and that I got shortlisted in any company if I apply. And sir also taught us about how to apply in companies for interviews and for job role. Sir, I have applied in several companies till now, and I got two shortlisting currently. That's all about my. ओके, गुड, Thank वेरी नाइस। नाउ मिस्टर नवनीत कहोगे, नीतीश। गुड इवनिंग थोड़ा सर। सा गुड इवनिंग। ऐसे ऐसे इंटरेक्टिव बनाने का प्रयास करिए कि लोग आपसे कनेक्ट भी रहेंगे, इसको उनको भी मजा आएगा कि आपने प्रेजेंटेशन दिया और लोग ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसी चीजों को ऐड ऑन करने की कोशिश करिए जो उनके लिए लर्निंग वाला चीज हो, क्या यार मैंने ये चीजों को देखा, मैंने ऐसे अप्लाई किया। कुछ इंटरेस्टिंग वे में अपने प्रेजेंटेशन को रखने का प्रयास करिए। यस नितेश, कंटिन्यू। Yes, sir. My name is Nitish Mandari. I did my graduation in civil वेट वेट, engineering. सॉरी सॉरी सॉरी, ये इंट्रोडक्शन नहीं है। Yes, sir. मतलब हमें अपना जैसे मॉक का इंटरव्यू करते हो वैसा नहीं है। ये एक प्रेजेंटेशन है कि हमने क्या क्या चीज सीखा, कैसे अपने, ऐसे थोड़ा सा करना। सॉरी डिस्टर्ब किया, Okay. बट यही करना है, ठीक है। No, it's okay, sir. Uh, Currently, I am pursuing BN professional course from Unique Civil. Uh, in that, we learn AutoCAD 2D. In AutoCAD 2D, we learn the command names, that is wall, uh, mirror, array, and purge command is an important command in that. And we learn line, polyline. These are the most important command in AutoCAD to- and also manually make the plan in AutoCAD. And after that, we made a 3D elevation section in AutoCAD. After that, in the class of Revit architecture, we learn the how to import a CAD file into the Revit structure, Revit, and we make the plan of 3D in intelligent 3D. We we measuring the schedule and quantity in that when we give in the when we move in the command view, then we uh, select the command schedule and quantity, and we find the schedule and quantity. After that, we learn the parametric family. This is very important. We make how it is useful in your project, as like we build that in our parametric family, and we put in and we load it in. After that, we uh, learn the after that we learn in review structure, that is uh, sheet, how to create sheet in actual project in the sheet format to view the stakeholder or client. And uh, and we move forward to the next chapter of the review structure. In that we learn about the different type of beam, different type of column. There is 11 type of column in the form of shape, size, and uh, as like a structure. After that, we learn about the beam.
uh, and type of the slab, one-way slab, two-way slab. In that we put the footing also, and the rebar command is there in the review structure that can we learn. I made the portfolio also for that. And ओके जी। today, and today I give the N circle interview. They called for the full test in 9 May. ओके, वेरी नाइस। ओके, थैंक यू नितेश। नितेश के बाद हैं उदित जी हैं, मिस्टर उदित। उदित के बाद समीर जी हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग उदित। Currently, I'm pursuing BIM professional course from Unix Civil Academy under guidance of Engineer Aspande sir. In this course, I learned about till now I learned about AutoCAD, Revit architecture, and Revit structure. In AutoCAD, we we learn about creating isometric drawing, floor plans, section elevation, and from that file we import that in Revit, and in Revit architecture part we learn how to uh, place wall, column, windows, etc. uh, uh, Roof, slab, and designing, and for designing elevations commands like revolve, sweep command, etc. And then we learn about uh, parametric families, uh, fam- uh, staircase, etc. Then portfolio making, and in Revit structure part, till now I have learned about footing, columns, beams, slab, and putting in reinforcement in all of these. ओके, नाउ मिस्टर समीर। गैस बाकी लोग प्लीज कैमरा को ऑन करके रखें और कमेंट करके रखें सर रेडी। शिशुपाल, सदाब, अभिषेक, अभी अपने से बोलने से अच्छा है कि आप खुद से बोले कि आई एम रेडी, तो अच्छा लगेगा कि हाँ, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हो। देखो आज उदित ने इंटरव्यू दिया, प्रियंका ने इंटरव्यू दिया, तो इनको इंटरव्यू में नीड पड़ी ना कॉन्फिडेंस की, वो कॉन्फिडेंस आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए। सो मिस्टर समीर। Good evening, everyone. Myself Samir. So first of all, I want to make friend behind. So first of all, I don't have any idea or any roadmap how to start, when to start. So just like so, I searched on YouTube and I found where Akash said the you at a cut playlist of 22 videos. So I did some 12 to 13 videos for AutoCAD, and then for searching for the BIM Protocol batches. So I want so I uh, got information about the February batch, and so I enrolled in that batch. So in that batch, I learned about the basic concept. So I clear idea about the BIM, what is BIM, how it works, so how to prepare for a job interview. Before that, I have no idea any of that, how to apply, what is BIM, how to sort software in BIM is available. So after getting the course, I have a clear idea. So what I do first, and then next step, what is my future in BIM. So that is when I, first of all, I learn about the AutoCAD. In AutoCAD, I learn about some basic command, line command, I draw the plan, and purge command, wall, windows, door, plus just like some basic thing and some advanced. I learn about AutoCAD. When I entered in Revit, so in the Revit, I learn about in wall, windows, extrusion, in a sweep command, and in a Revit, I model some G+6 to G+7 models. And when I have a clear idea about the BIM modeler, what is a BIM modeler job, and then I'll apply for some jobs, yeah, apply multiple companies, and when I started around 7 companies in around 1 month, and I take the minimum 5 to 6 interviews, but I got 2 offer letter for internship, not a full-time job. So that helped me to enter the SBIM and a clear perspective of my future, what I do and how to start. So that's the importance of this course in my life. वेरी गुड।
थैंक यू सो मच समीर, काफी अच्छा प्रयास किया आपने। एज कम्पेयर टू जो अभी तक हुए हैं उसमें से आपका काफी अच्छा। ठीक है। चलिए थैंक यू नाउ सर, थैंक यू। नेक्स्ट। ओके जी, नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर शिवम, रेडी हैं? शिवम जी, प्रतीक आप भी कमेंट करिएगा, रेडी हो जाइएगा तो। यस मिस्टर Yes, शिवम, sir. गुड So, इवनिंग। good evening, everyone. As you know, my name is Shrivam Chakravarti, and today I will be sharing my experiences and my upcoming means plans for my BIM. So, I'm just presenting my overall career in front of you guys. So, it goes like that. In the early career, means when I've just started my BTech, I felt that means I was very insecure about very side job. Means I thought that my career would go means that level in side job, and I started panicking that I've done diploma and after that I'm currently pursuing BTech, but I'm not very much feeling connected with this civil engineering branch. So what I did, I was just panicked and I was just searching that what kind of jobs we get from civil engineering in the BIM sector or other sectors. So at first I was searching for QA/QC plans that office job based, and after that I found about BIM and I've really connected with this job. And after searching BIM, I just wanted to land something into this. So I've just planned that how can I enter into this BIM industry. So at first I learned that AutoCAD was the base to learn. So for that, I just need to, means I was not very much as I belong from tier 3 college. So I don't know that what kind of softwares we need to enter this BIM industry. So after that, I have started learn AutoCAD from Mr. Akash sir. He has taught me AutoCAD, and after that, what I've done, I've just landed a small internship in my 99 Builders, and I've done that internship, and I felt very connected with this design sector. And after working for 2 to 3 months, I was very much fascinated with this job, and I thought that I should pursue my career into design. And after that, I'm doing this currently. I'm doing my BIM. As you know that I'm currently pursuing my BIM course from Akash Pandey sir. And apart from that, in this course, I've learned very much into that BIM is not just a software; it's just a workflow. So it's not a combination of software. In this is a different kind of field that it's just like a construction in a digital manner. So in this course, I've just learned that how BIM works. So it's starting from the very scratch part means AutoCAD. We have just learned Revit structure, Revit architecture, and other rendering softwares till now. So till now I've learned Revit parametric families, Revit families, that what how to do modeling from this Revit software. I mean, how can I transfer one idea, just a visual conceptual idea into reality. So till now I've made so much models, and apart from that, when I've done my modeling part, I learned how to showcase that my models means if a company is reaching me, what I need to show that to their company. So for that, sir has taught me to make build a portfolio and other things. Apart from that, sorry, my mouth is dry, so that's why. And apart from that, sir has taught how to reach companies by LinkedIn and other sources like Naukri.com and other things. So I have initiated my LinkedIn connections. I've just what I've done, I've started posting my works into LinkedIn as a thought. And after that, what I get response from means recruiters. They have contacted me. They have I have just started doing cold emailings. And what means after mailing means approx 50 companies, I've got a offer from Palladian designers, and the interview went well. Each and everything which I've learned, I have just told them, and I got my first placement from Palladian designers. After that, I've got another offer from Arcnetics as a CAD designer, and right now I am implementing my learnings and upskilling me every day, and I think that I will excel in this industry. Thank you so much. एक्सेलेंट, बहुत सुंदर, ऐसा प्रेजेंटेशन देना था। Thank you so much, sir. तो बहुत बढ़िया। सो गैस, कुल मिला के आपको इंटरेक्ट करना है लोगों के साथ। ठीक है, इतना अपने आप को वो दिखाना है कि हाँ, सामने वाले मेरी बात को सुने, समझे, और उसको भी कॉन्फिडेंस है कि यार क्या बोलते हैं, ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो देखिए कुछ लोगों ने काफी अच्छा अच्छा किया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ऐसा है कि अगर किसी को लगता है कि सर मैं अच्छा नहीं कर पाया, मुझे और फिर से बोलना है, प्लीज कमेंट करें, आपको कोई वो नहीं है। ठीक है। और अभी आज ऑलरेडी मैंने ऑफलाइन में भी सेम किया था, मैंने 2 बार 3 बार किया कुछ लोगों का। तो आपको अगर लगता है कि सपोज प्रियंका को लगता है या दिया को लगता है या फिर समीर को लगता है कि सर आई वांट टू डू जो मैंने किया इससे बेटर मुझे करना है, प्लीज कमेंट करके रखें। तो क्या बोलते हैं, आप फिर से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनको कॉन्फिडेंस नहीं महसूस हो रहा है वो लोग कमेंट करें कि उनको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं महसूस कर रहा है, क्या हम लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं। मिस्टर सदाब।
Good ये evening, सबसे sir. बेस्ट स्किल होगी अगर आप प्रेजेंट कर पाएंगे। यस सर, गुड इवनिंग। Sir, due to the technical problems, my camera is not working sir, properly. ओके। Sir, hello, sir. Hello, everyone. My name is Shadab, and I am from UP Shahjahanpur. Currently, I am working in Lucknow, and I completed my diploma in civil engineering in 2016. After that, I worked in construction field, and I gained practical experience in site execution, quantity takeoff, and after that, I realized I want to upgrade my qualification and pursue BTech in civil engineering in 2023 to 2026. Currently, my final result is awaited, and to enhance my technical skill, I have learned AutoCAD, where I can prepare and manage 2D drawings, work with layers, scaling, and blocking. Currently, I am pursuing BIM training at Unique Civil, where I am learning Autodesk, Revit. I started with Revit architecture. Like my project is a Chaudhary project apartment and villas modeling column. Right now, I am working on my Revit structure. I have knowledge of modeling column, beam, slabs, basic reinforcement along with scheduling, cost, quantity takeoff, and I am continuously practice in at a Unique Civil. My goal is to combine work with BIM technology. That's all. Thank you to all. ओके जी, गुड ट्राई। नाउ मिस्टर इनामदार। मिस्टर इनामदार, उसके बाद हुसैन साहब हैं। हुसैन के बाद कोई रेडी है तो कमेंट कर दें। Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। गुड Currently, इवनिंग। यस यस। currently I am pursuing Unix Civil from BIM from Unix Civil. Mentor and author is Akash sir. And in this course, I have learned in AutoCAD to how to make a 2D drawing and a 3D drawing, and all the basics and important commands I have learned. And after that, I have learned. After that, I have learned Revit architecture. Revit architecture. In that, Revit architecture, I have learned how to set units and how to use all the commands. And I have done some projects like Chari project and Chaudhary projects and the Ashish project. And sir told me to make a link to make to make a LinkedIn profile, and I have created one LinkedIn profile, and people and uploaded my three works there, and people are appreciating my work. That For that I am so happy. Uh, and this is all happened because of this course BIM from Unix Civil. And after the architecture Revit, I am learning Revit structure. Uh, in that one, I have learned how to place a column, beam, and footing, and how to make slab, and how to make uh, 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 how to make reinforcement. And currently I have done all the projects in Revit structure, and last one is pending. That is the building. That is the building. Thank you, sir. ओके जी, वेरी गुड। काफी अच्छा प्रयास किया इनामदार, गुड ट्राई। देखिए guys, ये उनसे अच्छे हो गए जिन्होंने प्रयास ही नहीं किया। अब ये जो छोड़ेंगे वो बचेगा उनको जो प्रयास करने का ट्राई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है जी। नाउ मिस्टर शाकिब हुसैन साहब।
और उसके बाद जो रेडी है प्लीज कमेंट करें। मैं इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपकी जरूरत है। आपको अगर अपना करियर अच्छा बनाना है तो आप करेंगे, नहीं बनाना है तो फिर आपकी मर्जी है। जिसको बनाना है उसको हम सपोर्ट करेंगे। हुसैन जी रेडी हैं? ठीक है। Good evening, यस यस sir. कंटिन्यू। I am Mohammad Shakib Hussain, sir. Today I am presenting my experience and pursuing BIM course, sir. Currently, I am working as a senior draftsman in Muzaffarpur Divisional Office, and my work is architectural plan and structural plan, like in architectural plan like fuel station project and residential and commercial project, and in a structure like include column layout and footing layout and beam layout, plinth layout, and uh, BIM reinforcement. After that, in BIM course, I learned about Revit architecture, Revit structure, and about Inkscape software. In Revit architecture, I learned about residential project like more than five project I did learn in BIM course, sir. And now currently I am learn about Revit structure, how to create a footing layout and a column layout and reinforcement, and that's about myself, sir. गुड ट्राई। नाउ मिस्टर, नो इट्स नॉट मिसेस, मिस अक्षता। अक्षता रेडी? और अक्षता के बाद हैं प्रतीक जी एंड फिर मोनाली जी हैं। Hello everyone, my name यस is Akshata. I'm pursuing a BIM course. Uh, Actually, I have experience in AutoCAD previously, but I think now uh, BIM is a booming industry. We have to. I thought that I have to join some BIM course, so I joined Unique Civil from YouTube videos. Yeah, and uh, in you, sorry, sir. ओके राइट, Yeah, आराम से रिलैक्स होकर ट्राई, कॉन्फिडेंस। देखो क्या होता है कि हम पहली बार कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि हमारा बेस्ट होगा अक्षता, बट आप प्रयास कर रहे हो, ये सबसे बेस्ट चीज है ना। yeah. फिर से ट्राई करो, स्टार्ट करो फिर से। Yeah, I'm pursuing BM course from Unix Civil. I learned various softwares from the basic AutoCAD. Actually, I have experience in AutoCAD, but in everyday we learn something new in the class. Actually, in class, sir started from the line command. From basic to advanced, we have to learn everything. Mm, he cleared each and every doubt, and I like that this from sorry, I like this in uh, yeah, in BIM I learned Revit architecture, which is totally new for me. I know about the various spheres in BIM, but I don't know anything about BIM because I don't have experience in that. But I know I know what is BIM and everything about the BIM. Theoretical parts also covered in this course. So I learned uh, I learned BIM architecture. I did various projects, Chaudhary projects, and many more projects. I did 3D models also. In very less time, I covered this much. So it is. I think it give me very it improves my confidence. So now I'm trying to apply in various companies. Sir guide us about how to apply and how to apply for the jobs and how to make portfolio also, so that with the help of that uh, we have to improve ourselves. So now we started structures. I learned
various basic commands in Revit structures. I did some projects also, warehouse and how to apply reinforcement in it. Each and everything we learned from this course. So I think I have, I mean, to say that with AutoCAD we have some not that much. I mean, BIM gives us good growth and professional career to us. So I think this is the best platform to learn BIM. Thank you so much. ओके जी, गुड ट्राई। देखिए अभी सेकंड टाइम आपने कितना अच्छा प्रयास किया ना अक्षता, हुआ ना? Yes, sir. ठीक है, Yeah, तो sir. इसलिए घबराना नहीं है, हमें हमें प्रयास करना है, ठीक है। Yeah, और sir. इंटरव्यू के लिए भी मैं क्यों बार बार बोलता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू पे जाओगे तो यही गलतियां होंगी, एक दो में होंगी, तीसरे में सही हो जाएंगी, हाँ सर. ठीक है। इसलिए कीप अप्लाइंग, ठीक है, Yeah. अप्लाई करते रहिए, रिजेक्ट होते रहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा, ठीक है। Okay, sir. Thank you. ओके जी, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर प्रतीक जी हैं, प्रतीक के बाद मोनाली जी हैं। प्रतीक, प्रतीक। Hello, hello, यस, sir. यस Hello, प्रतीक। each and everyone present over here. So let me introduce myself. My name is Pratik Kumar Gupta. Basically, I am from Lucknow, and I am having a 12 plus year of experience in civil as a site execution work planning and other related quality assurance and billing in industrial exposure work, where I faces many challenges regarding some challenges to the local means contractors and challenges against the remote locations. So after that, I took a career break in 2025 November. From that day, I thought, okay, I have to learn something new where I can just upskill my level, and I have to leave that remote location due to my some family issues. From there, I got some social network site, especially YouTube, where I just gone through this channel, Unique Civil, where I could just explore myself, and I just was searched 2 3 videos where I said that I saw that ki sir is better to explain each and every with our, I mean to say, in Indian level, as we learn so some basic or lean level languages we uses nowadays. So sir is explaining as man to man or clearly just explain, not he's rushing the courses or just giving time each and every command to each and every person to take a time and just learn, and again he if there any query then he can ask. So from there, I got that. I've also just gone to contacted 2 3 more means beam institute, but I just ignored them and just joined such course. From there, sir taught me from 23rd of Feb classes to, and I learned starting AutoCADs, and then 15 to 20 days to in an AutoCAD 2D and 3D, where I learned multiples of command. Already I have an exposure in that, but just sir explained me new commands and how to create the elevation and layout plan, and the especially staircases, where I face many challenges to just means to say the build up that staircases, and some more special commands, annotations, revolve loft, each and every book. So I just gone to sir 2 tests also. Sir gave some assignments we have completed on time and submitted. After that, sir started the Revit structure, sorry, architecture. From there, we for as an Revit architect, it was my first project where I was to means learn, and I will just it took around a month where sir just to explain each and every command, and we have gone through, and we have done lots of command, especially plan, 2D, 3D, and all modeling work, how to escape, and how to just represent ourselves. After that, we have gone through this how to make a portfolio. This was my best experience that sir taught me as well, like how to prepare the portfolio and in a rental profile. Especially we in remote location, we are as a site engineer. We just especially disconnected to the advancement of the world. What are the urban areas thinking, and what how they used to implement themselves using the latest model.
as site engineer, we don't get connected to them. So by which we started learning also, and now preparing and in LinkedIn profile also, and making portfolio as well. Nowadays, we are just learning a PB structure, but I'm facing some challenges, but I know I will overcome that. It will take a week or so. That's it. एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, गुड ट्राई। नाउ नेक्स्ट इज मोनाली। और मोनाली के बाद कोई पेंडिंग है तो प्लीज कमेंट करें। मेरी वीडियो ऑन नहीं हो रहा है सर। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। Yes, sir. My name is Monali. I was working as a structural draftsman, but due to some reasons, I left my job. Then I have some time, so I decided to learn something new. So I pursuing a BIM course, and in the BIM course, I learn lots of things like what is BIM, advantage of BIM, importance of BIM, what is BEP, BIM execution plan, and many more lots of things. And we also learn something in theoretical like Vastu Shastra, RERA, building bylaws, and all. In Revit, I learn lots of things like in AutoCAD, I learn AutoCAD, Revit, Enscape, Revit architecture, Revit structure. In AutoCAD, we learn lots. We learn we learn to start from basic commands to line, array, and all like this. All this type of all types of commands in Revit, we learn starting from basic to wall, door, window, and all how to create families, parametric family, non-parametric family. What is parameter? We learn different types of parameter. We learn how to create models. We learn how to create how to apply materials, how to create some different types of safe facade, and all. And also we learn about portfolio. I never used Canva, Canva, and I started to made portfolio. Portfolio is very important to for applying job. I never made this type of work. I never made portfolio. And Akash sir give lots of efforts, and always he is ready to solve our problems. And also I enjoy this course, and I learn lots of things I never thought like this. I complete this course, and I learn this type of things. Uh, thank you so much, sir. वेरी गुड, थैंक यू मोनाली। नाउ मनसुख, मिस्टर मनसुख। ठीक है, देखिए कुछ लोग बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन का सेंस ये होना चाहिए कि हम लोगों को बांध पा रहे, लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग दे पा रहे कंटेंट में, और आपके पास तो समय भी है सोचने का। तो आप जब भी स्पीक करें तो इसमें प्लान करें कि हम वो कीवर्ड्स यूज करेंगे जो कीवर्ड्स सामने वाले को बांधेगा। ठीक है मनसुख, रेडी हैं आप? Yes, sir. ओके जी, Hello. यस मनसुख, रेडी। यस, Hello. यस, कंटिन्यू। Am I audible? यस, यस, यू आर। Okay. Good evening, everyone. And the things I learned from this BIM course. Talking about my experience, I'm a working professional with 2 years of site experience from luxury villa project and complex metro project. As a civil site engineer, I faced a lot of many problems which can be easily resolved by initial phases of drawing and planning. For finding this solution, I came across with the BIM. Then I started searching for BIM. What is BIM and what it actually does. Then I decided. Then my interest will be. Then I started learning new things from BIM. So I am very much convinced about the BIM. So I decided my career for this pathline. Then I started searching for my nearby BIM institute.
uh, but the institute timings are very clashy and not flexible as well. So I started an online BIM course. Then I came across from Unix Civil. From there, I started learning BIM. Let's starting from the scratch. We learned AutoCAD. In AutoCAD, we learned 2D, AutoCAD 3D, and we learned the unique commands and unique technique for AutoCAD. That's why the institute name itself as a Unix Hill, and there we learn unique things. Uh, then we started the BIM course. We started from scratch, wall modeling, foundation, floor, from basics to advanced level. We done a lot of project from there. Uh, uh, After that, we started Revit structure now. As of now, we going very smooth and very convincing, and I am very much confident about my work also. I got very confident from for doing my uh, best from this course. Uh, so that's it. गुड Sorry, ट्राई, sir. गुड ट्राई, गुड ट्राई। मैं म्यूट करके रखता हूँ इससे कि आपको डिस्टर्ब ना हो मेरे से। बहुत बढ़िया। अब देखिए guys, कुछ लोग ने काफी अच्छा किया, कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे कि मुझे लगा कि प्रियंका शायद आपका उतना अच्छा एक्सप्रेस नहीं हो पाया जितना आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसी चीज को प्रियंका एक बार हम फिर से कर सकते हैं, और इस बार मैं चाहता हूँ कि आप अपने नेटिव लैंग्वेज में उसको बोलो। ठीक है, जस्ट चेक करो कि लैंग्वेज का कितना बड़ा इफेक्ट होता है जब हम अपने किसको नेटिव लैंग्वेज में, जैसे कि आप अगर घर पे क्या बोलते हो, मराठी बोलते हो प्रियंका? मराठी। यस। अब इसी चीज को ना आप मराठी में प्रेजेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन मतलब कैसे होता है, कम्युनिकेशन की कोई वो लैंग्वेज नहीं होती। कम्युनिकेशन तो हम लोग जिस लैंग्वेज में अच्छा कर सके, नो डाउट, एज पर द पब्लिक हमें करना पड़ता है, बट आप अपने नेटिव लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट करिए अपने आप को। सर बट मैं ट्राई करना चाहती हूँ इंग्लिश में। गो ट्राई, अगेन ट्राई करो, मुझे मतलब आपका थोड़ा इंप्रूवमेंट यस, चाहिए। yes. I am learning from AutoCAD in a command and a mirror, offset, trim, polyline, array in AutoCAD, and also making a 2D drawing in section, elevation, floor plan, and in Revit in command, learn in Revit, wall, beam, wall, beam, roof, and foundation column, and also structure command is known in column, foundation, and beam, and also making a floor plan in 3D view, and also section in Revit, and takeoff quantity also learn from takeoff quantity on Revit, and rendering also learn, and how to make a portfolio in Canva, and also ATS friendly create resume, and also how to apply in companies, Naukri.com, Indeed, on web company's website, and today also in interview in this basis of in boost my confidence in this mock test, also how to present myself. And एक्सेलेंट, thank you, sir, for my कंटिन्यू करो। previous is AutoCAD designing level is 0 working in college, and then 2 years not working in AutoCAD, and then in 0 to 100% in working on AutoCAD, and next level in working on Revit also. Thank you, sir, for this opportunity. एक्सेलेंट। देखिए प्रियंका, जब दोबारा आपने बोला तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको लगा ना? Yes, ठीक है, sir. यही हमें करना है कि हमें ना, जैसे कि अभी कैसे होता है कि मेरे पास तो समय की लिमिटेशन है, बट आपके पास नहीं है ना।
आप क्या कर सकते हो, Yes. लैपटॉप में कैमरा है, कैमरा ऑन कर लिया, मोबाइल में कैमरा ऑन कर लिया, जस्ट अपने ट्रेनिंग को प्रेजेंट करो। ठीक है। कभी ऐसे Okay, आपको sir. अपॉर्चुनिटी मिले तो ऐसे जगह मोबाइल रखो कि आप ऐसे खड़े होके स्पीक करो। ठीक है। तो उससे क्या Okay. होगा ना, हमारा कॉन्फिडेंस अप के कंडीशन में चला जाएगा। ये मुझे सिर्फ दिखाना था ट्रेलर, कि आप अगर ऐसे अपने आप से बात करेंगे। देखिए क्या होता है कि किसी ने पूछा व्यायाम के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हो, व्यायाम के बारे में क्या क्या प्रिपरेशन किया है आपने। ठीक, अगर ये हम पहले से Okay. प्रैक्टिस करके रखेंगे। जैसे आप, आपको कोई पूछे कि आपके घर में आपके मदर का नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, ब्रदर का नाम क्या है, क्या सोचना पड़ता है, पता है ना। ठीक है, हाँ. सेम वही चीज हम अपने व्यायाम के साथ कर लें कि इतनी अच्छी हमारी व्यायाम से बॉन्डिंग हो जाए कि बहुत ज्यादा हम यूज टू रहे उस चीज से लेके। ठीक है। फिलहाल आपने Okay, sir. सेकंड टाइम काफी अच्छा ट्राई किया है। ठीक है। चलिए मिस्टर Thank you, सेन, sir. आप कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं, बिल्कुल करें। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, friends. I am Akash Sen from Raipur, Chhattisgarh. I am sharing my experience as a BIM. Uh, when I started working in Revit since 2015, I learned Revit and AutoCAD in 2015 when I was in third year college, and I have been using Revit since 2015. I have made my major and minor project in Revit also, but I didn't know about the detailings of the BIM. I just knew about Revit is a BIM software, but not actually what BIM is. Then, while working 5 years back, when I was a CAD draftsman, I was in consultancy. Then one client came from Ultratech that they wanted 2D rendered plans. That time I didn't know about rendering. So then I thought that how can I do in AutoCAD? I was just doing hatching and presenting, but they didn't like it. Then they told me about BIM. You can make plan in Revit and render it. It look better while presenting for the plan. Then I started searching about BIM. But that time I was not aware, and also BIM was not much popular in India. Also, many companies didn't opt for BIM. Then I thought for structural engineering. I have done MTech structure, and I've been connected with Akash sir since last year. I was in the structural Gurukul batch, and it was phenomenal. I After that course, I have been joined a company as a junior structure engineer. And recently, sir, I have been मुझे जो बेनिफिट हुआ सर, अभी लास्ट वीक की बात है सर, कि ओके। एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हमारे पास आया ड्यूरिंग राफ्ट फाउंडेशन का। तो उसके बहुत जो स्टील की डिटेलिंग थी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। उसका जो वो अपन क्वांटिटी जब निकाल रहे थे तो वो किसी से एक्यूरेट नहीं था। तो सर ने साइड से 2 लोगों ने निकाला, हमने ऑफिस से 3 लोगों ने निकाला अलग अलग, एक की भी मैच नहीं करी क्वांटिटी। बट आफ्टर लर्निंग रेविट स्ट्रक्चर, मैंने सोचा कि मैं रेविट पे बनाता हूँ। मैं पूरे जो मुझे ड्राइंग को रीड करनी अच्छे से आती है, तो मैं ड्राइंग को रीड करके मैंने रेविट स्ट्रक्चर में बनाया, और उसके बाद वहां से मैंने टेक ऑफ लिया। तो जो हमने टेंडर कोटेशन में जो आया था वैल्यू, उससे 1% वेरिएशन में मैच हो गया वो। गुड। तो वो मेरे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा सर। और उसी के अकॉर्डिंग सर अभी मैं बिम मॉडल भी बना रहा हूँ अपनी कंपनी पे, स्टार्ट कर दिया। और जो बिम मॉडल्स आते हैं सर, मैं ही चेक कर रहा हूँ आजकल। मुझे ऑफिस बहुत पता है, तो मैं स्ट्रक्चर और बिम दोनों में काम कर रहा हूँ सर। तो बहुत एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर भी मुझे बिम बहुत हेल्प कर रहा है। हम्म, तो सर यही एक्सपीरियंस शेयर करना था बहुत सर। बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू। बहुत बढ़िया। और एक्चुअली मुझे आपका जो अच्छा लगा वो अच्छा लगा कि कीप लर्निंग, यू ट्राइंग टू लर्न एज मच एज यू कैन। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में हो। एक और चीज सर, एक और चीज सर, जो हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था हाँ। सर, मुझे बहुत अच्छे आइडियाज मिले जो कुछ लोगों ने हमारे बैच से बनाए हैं। मुझे और अच्छे आइडियाज मिल गए उससे, और हाँ, मैं फिर से उसमें ना वर्क कर रहा हूँ सर। मैं उसका बहुत प्लान, बढ़िया। फिर मेरे को अपनी गलतियां समझ में आई सर, कि मैंने जो प्लान जब बनाया था उसमें क्या गलतियां थी, और उसमें मैं क्या चेंज कर सकता था। क्या बहुत चेंज कुछ कर मुझे समझ सकते। में आ गया सर। सबसे यस। पहले सर, उसका एलिवेशन में जो प्लानिंग का जो लोकेशन था सर, उसमें वेंटिलेशन की इशू थी। ओके। दो तीनों बिल्डिंग पैरेलल थी, तो सनलाइट और प्रॉपर वेंटिलेशन तीसरी बिल्डिंग को नहीं मिल पाती जो छोटी थी, जो 2 BHK यस। प्लान थी। और फिर मुझे याद आया सर कि उसमें स्ट्रक्चरल लेआउट सही नहीं थी। हाँ। उस पे मैंने करेक्शन किया, रैंप का प्रॉपर प्रोपोर्शन मुझे देना था, तो मैं बना रहा हूँ सर उसको। मैं बाहर आउटसाइड से सर्कुलर रैंप दे रहा हूँ पार्किंग के लिए। तो एक्सेलेंट। एलिवेशन भी बहुत बेहतरीन आ रहा है। बहुत बढ़िया।
तो उसमें मैं स्ट्रक्चर डिजाइन भी खुद कर रहा हूँ, अभी उसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं अपने, इसलिए मैंने पोर्टफोलियो बनाया नहीं है सर अभी। मैं सोच रहा ओके। हूँ कि मैं इसका प्लान भी खुद करूँ, स्ट्रक्चर भी बनाऊँ, और उसका बीम मॉडल भी पूरा मैं खुद प्रिपेयर करूँ, तो उसको मैं पोर्टफोलियो में एक साथ ऐड करूंगा सर। तो मैं थोड़ा अलग सोच रहा हूँ बहुत सर, कि बढ़िया। स्ट्रक्चर और बीम का कॉम्बिनेशन सोच रहा हूँ सर। यस। नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा ग्रोथ है, क्योंकि ये भी जो क्या बोलते हैं, ये बच्चे ऐसे हैं जो इन्होंने स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन लेके बीम के साथ ऐड किए हुए हैं। मेरे जी पास सर। ऐसे कई बच्चे जो 15 लाख के ऊपर का पैकेज ले रहे हैं। ठीक है, जी अब सर। होता क्या है कि हम मार्केट में खुद को प्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो, मैं आज जी आप लोग को सर। प्रेजेंटेशन क्यों करा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन एक ऐसी आर्ट है गाइस कि जिसके थ्रू आपको जितना आता है सब शो कर पाओगे। ठीक है। जी आपके सर। शॉप में बहुत कुछ है, आप मार्केट में प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो, वैल्यू तो जीरो हो गई। जी ठीक सर। है। तो ये प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट शो केस ऑफ योर नॉलेज, शो केस ऑफ योर वर्क, वट एवर यू नो। कभी कभी देखते हो ना कि कम नॉलेज में भी लोग अच्छा पैकेज ले रहे हैं, ज्यादा नॉलेज है बट प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वही 2-3 लाख पे काम कर रहे हैं। ठीक है। 2-3 लाख पे काम करने में कोई बुराई नहीं है, बट इफ यू आर बिगनर, बट इफ यू हैव एक्सपीरियंस, यू नीड टू गेट द मोर एक्सपीरियंस, द मोर पैकेज, और उसके लिए सर प्रेजेंटेशन मेरी बहुत एक हेल्प करता प्रॉब्लम है। है सर, हम्म। मेरी एक प्रॉब्लम ये मैं फील कर रहा हूँ। मेरी इंग्लिश अच्छी है सर, मैं जब लिखने आता हूँ तो यस मैं बहुत यस। बेहतरीन लिख लेता हूँ, लेकिन जब बोलने का आता है मैं इंग्लिश में स्टैमर करता हूँ, तो हकलाता हूँ, तो वो मुझे बोलने नहीं होता। तो इसलिए तो मैं कभी मिक्सिंग में कभी ही बोल होता रहा हूँ। है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार इसके लिए ना तुम्हें सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए, ट्राई टू स्पीक मोर। ठीक है। जी सर। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जब वो अभी हिंदी में बोलते हैं, वो तुतलाते हैं थोड़े सा। ठीक जी है। सर। तो अब वो होता है क्या है, धीरे धीरे उनकी हैबिट ठीक हो जाने लगती है, जब उनको वर्ड्स बनाने लगते हैं वो ना, तो इट विल जी टेक सर। टाइम, और उसका एक ही तरीका है कि आप किसी से कन्वर्सेशन करें। ठीक है। जी सर। एटलीस्ट 10 मिनट, 5 मिनट। आपके बैच में बहुत लोग हैं। ठीक है, आपने 4 लोग को मैसेज किया, कोई एक तो रेडी है, ठीक है, चलो तुम्हारे साथ कन्वर्सेशन करता हूँ। ठीक है, और एक जी सर। टेक्निकल कन्वर्सेशन से कुछ ना कुछ आइडिया भी मिलता है। जी ठीक है, सर। चलो एक दो लोग का और बचा हुआ है, सो संजय जी का करते हैं। संजय, यस फर्स्ट सर। एक्सप्लेन कि व्हाई नॉट रेडी बाय योरसेल्फ, मुझे क्यों कमेंट करना पड़ा आपके लिए। सर एक्चुअली थोड़ा इंग्लिश बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है सर, बस इस वजह से। ओके। क्योंकि आपका काम तो अच्छा है, लेकिन जब इंग्लिश बोलने में खराब हो जाओगे तो ये वही हो गया कि आपने चीज बड़ी अच्छी बनाई, प्रेजेंट कैसे करोगे, जीरो हो गया यस, ना फिर तो। थोड़ा दिक्कत यही होती ना। ठीक है, यही ठीक तो ठीक करना पड़ेगा ना इसको। जी सर, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट एंड नाउ, स्पीकिंग। प्रेजेंट। Hello everyone, my name is Sanjay. I belong to Lucknow. In this course, I have learned AutoCAD, Revit. In AutoCAD, I have learned how to draw 2D drawings, elevation, sections, and plan, and also learn how to draw a 3D model in AutoCAD. In Revit architectures, I learn how to creating a different types of walls, windows, and doors. I know about the component like extrusions, sweep, blend commands, and extra. Uh, uh, कंटिन्यू। in Revit, I learn how to use of curtain walls in different places. I have done many projects in Revit architectures. My first project is Chaudhary project. In this project, I have learned more about the Revit software, like creating walls and detailing the project. Uh, uh, सर बाकी हिंदी बोल दे आप हिंदी में। वैसे अलाउबल नहीं है, बट ठीक है, आप बोलिए, कोई बात सर जो मुझे ना रेविट जो 3D मॉडलिंग का जो स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट था इसको सीखने का। तो मैंने आपका वीडियो 2-3 बार देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया। तो फिर जब इनकी आपसे हमारी बातचीत हो गई तो हमें बीआईएम जो सॉफ्टवेयर था ये हमें बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए हम इसके लिए तैयार हुए कि हमें ये सीखना है हर हाल में। तो सर हम ज़्यादातर रेविट आर्किटेक्चर में बहुत से टाइम देते हैं ताकि हम अच्छे से इसको सीख सकें। बस थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से, इसकी वजह से मैं थोड़ा वीक हो जाता हूँ। क्योंकि सर मैं जानता हूँ टेक्निकल नॉलेज मैंने बहुत अच्छी सी गेन कर ली है, बस थोड़ा बहुत स्पीकिंग की वजह से ही थोड़ा रह जाता हूँ, बाकी तो कोई दिक्कत है। नहीं है। स्पीकिंग पे काम करो ना संजय, अगर स्पीकिंग हमारा वीक है सर कोई बात एक्चुअली एक्चुअली ना सर मेरे घर पे और कोई है नहीं जिससे हम बोल सकें ज़्यादातर। एक्चुअली कोई होता तो बोलते हैं कि सर हमारी मम्मी पापा थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत वीक हो जाती है। अगर जो सर साथ में कोई कम्युनिकेट करने वाला हो तो
हम भी सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा ये दिक्कत रहती है। आपने ट्राई किया किसी से कम्युनिकेट करने का? सर मैंने ट्राई किया था, मेरे बड़े भैया हैं, मैंने उनसे ट्राई किया, थोड़ा बहुत हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। बाकी हम तो और बेटर करने की सोच रहे हैं। और बेटर करिए, ठीक है। अब सर देखिए, किसी से बोल नहीं सकते कोई बात नहीं, बट खुद से तो बोल सकते हैं। सर ठीक खुद है। से तो मिरर के सामने हम बोला करते हैं आता, हम ठीक है। बोलते रहते हैं। आपको बताऊं भी, चैट जीपीटी पे आप चाहे तो प्रैक्टिस करें। चैट जीपीटी को सोच से बोल दीजिए कि हमको इंग्लिश में आपसे प्रैक्टिस करना है तुम्हारे साथ। आप जो जो बोलेंगे उसका आंसर वो करते चले जाएगी। और आप सर उसको ट्राई बता किए दीजिए थे, कहाँ। तो ट्राई किया था, ट्राई किए थे सर। लेकिन रोज नहीं किया होगा। हाँ सर, रोज नहीं कर पाते हैं। ये जो ट्राई करना एक अलग चीज है, रोज करना बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। तो करो इसको, क्योंकि क्या होता है संजय कि हमने डिवाइस बड़ी अच्छी बना ली, मार्केट में लॉन्च ही नहीं कर पा रहे। तो ये हो क्या क्या कि वही होता है कि न लॉन्च करने की वजह से ठेले पे बेचना पड़ेगा 200 रुपए किलो में, और वही चीज मॉल में लॉन्च हो जाएगा तो 2 लाख रुपए केजी हो सकता है। इम्प्रूव इट। ठीक है। इम्प्रूव करिए। देखिए, आपके लखनऊ में एक मैंने देखा था यार, सोशल मीडिया पे बड़े अच्छे ट्यूटर थे। वो इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लासेस करते हैं। तो अभी मैं नाम मुझे नहीं याद आ रहा उनका। अगर तुम्हें चाहिए होगा तो मुझे डीएम करके रखना, मैं सर्च करके बताऊंगा। बड़ा ठीक है ही सर, मैं टीम कर अच्छा दूंगा। सिखाते हैं वो इंग्लिश। मैंने किसी उनका वीडियो देखा था, 2 4। एक वीडियो देखा, अच्छा लगा, मैं 2 4 देखा उनका। तो मुझे ऐसा लगा कि लखनऊ में वो अच्छा सिखाते हैं। ठीक है, तो तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है। वो कुल मिला के ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज पे काम कराते हैं, सॉफ्ट स्किल पे काम कराते हैं, कॉन्फिडेंस गेनिंग पे काम कराते हैं। और मुझे उनका कुछ भी नहीं पता, फीस वगैरह एड्रेस वगैरह कुछ नहीं पता है, सिर्फ मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। ठीक है। तो एक बार डीएम कर देना, मैं सर्च करूंगा, अगर मिल जाएंगे तो बता दूंगा। तुरंत याद नहीं आ रहा है मुझे नाम। ठीक, काफी ठीक है टाइम सर, हो मैं डीएम एक कर आध महीना दूंगा। हो गया। ठीक है, चलेगा। ओके जी, नाउ नेक्स्ट इज शिशुपाल जी, लास्ट है। Yes, मिस्टर sir. शिशुपाल। शिशुपाल, यू व्हाई नॉट रेडी बाय Good योरसेल्फ? evening, sir. Communication issues. कम्युनिकेशन। देखो क्या होता है, हम पीछे वाले रो में क्यों बैठते हैं? कुछ गड़बड़ रहता है तभी ना। ठीक Yes, है। लेकिन ठीक कब होगा? जब आगे बैठने का प्रयास करेंगे ना। try kar. Yes. ठीक है। तो नाउ एक्सप्लेन अबाउट योर एक्सपीरियंस। Good evening, sir. First, thank you for giving me this opportunity. Myself is Supal Kumar. I am belong from Nalanda, Bihar. Now I am pursuing BTech in civil engineering, and I also pursuing being professional course by Unix Civil with the guidance of Akash Pandey sir. In this course, I learned lots of things like AutoCAD, Revit architecture, Revit structure, in SCAP, how to create a portfolio and LinkedIn profile. In AutoCAD, I learned about how to create plan, section, elevation of any building with the uh, with consider of Vastu Shastra. And I also learned Revit architecture. In Revit architecture, I create many project like a Chaudhary project, Charlie project, Massing site. In this project, I learned lots of things like how to create wall, a staircase, uh, Revit family, and more thing. And in Revit architecture, I learned re- parametric family. Uh, uh, those are used in Revit project, and I also learned Revit structure. In Revit structure, I learn how to create column, how to create slab, and how to insert reinforcement in slab or column, how to insert tie. After that, I learn how to create portfolio while Canvas. Canvas is very useful for present create presentation. I also very satisfied with this course. ओके। ओके, और ट्राई करना, करो करो, बोलो बोलो, तुम्हें पूरा I छूट है। and I also share my building Revit building model in LinkedIn profile.
and I get lots of like and comments in LinkedIn profile. That is good for my as career and skills. Thank you, sir. ओके जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच शिशुपाल। देखो यार, मुझे कई बार ऐसा सोचता हूँ मैं भी कि ऐसा कुछ एक्टिविटी में रेगुलर करूँ, बट क्या होता है क्योंकि अपना सिलेबस बहुत बड़ा है, शिशुपाल एंड एवरीवन जिसके लिए भी, ठीक है। तो मैं अभी उसके बीच में समय निकालना इतना संभव नहीं है, ठीक है। एक दिन का समय निकालना भी मुश्किल हो जाता है, मंडे का भी। बट आपके पास समय है, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर ऐसा कुछ करिकुलम हम तैयार कर सकते हैं जिसमें ऐसा कुछ करें। तो अभी कैसे होता है, अपने क्लास में तो नहीं संभव है, ठीक है। उसके लिए अलग से कुछ हम लोग को करना पड़ेगा, और सच से बताऊं तो सबको नीड नहीं है, ठीक है। काफी लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उन्हें नीड ही नहीं है कम्युनिकेशन वगैरह की, बट कुछ लोगों को नीड है, ठीक है। तो इस पे क्या बोलते हैं, ठीक है, मैं सोचता हूँ कुछ अगर हम लोग कर सकते हैं क्या। क्योंकि देखो सबसे बड़ा चीज क्या है, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म यानी आपकी अगर अच्छी कंपनी बन गई, आपने स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे करके बहुत बड़ी चीज नहीं है, बॉडी लैंग्वेज काफी लोगों का है गड़बड़ यहाँ पे, और कॉन्फिडेंस, और दूसरी चीज इस तरीके की एक्टिविटी। मैं वोट करता हूँ, अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड रहते हैं तो मैं कुछ ऐसे एक बैच जैसा बनाता हूँ, अगर संभव होगा तो। डेली तो नहीं कर पाऊंगा मैं भी, ठीक है। तो हो सकता है सैटरडे संडे में ऐसा कुछ मैं प्लान करूँ, तो मैं बोलता हूँ आप लोगों को। कुल मिला के एम ये होना चाहिए कि हमारा जो सिलेक्शन होना था 15 पे, मैं कर दूं उसको 25। होना था 25 पे, कर दिया जाए 35। 35 पे होना था, कर दिया जाए 45। और ये संभव है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, ये फिक्स मानिए आप, ठीक है। अभी ऑफलाइन में एक बच्चे का इंटरव्यू हुआ, ठीक है। इतना अच्छा उसने क्या बोलते हैं अपना इंटरव्यू दिया, कम्युनिकेशन वाइज। टूल टेस्ट उसका गड़बड़ हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, कंपनी ने उसे दोबारा टूल टेस्ट देने के लिए बोला कि आपने अच्छा किया है, एक दिन के बाद फिर से टूल टेस्ट दीजिए। दोबारा टूल टेस्ट दिया, सिलेक्शन भी हो गया। आदर्श नाम है, शायद पता नहीं अभी ग्रुप में आपके आया है कि नहीं पोस्ट वगैरह। कुल मिला के कहने की बात ये है, उसके कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा उसको फायदा हुआ, ठीक है। और ऐसे में बहुत लोगों को देखा हूँ जिनके कम्युनिकेशन को जैसे शॉर्ट टेस्टिंग ज्यादा होते हैं, क्योंकि एचआर से उन्होंने अच्छे से बात कर लिया। तो इस पे काम करिए। बाकी देखते हैं, अगर इस पे हम लोग कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे। लेकिन अगेन, बहुत ज्यादा हमसे उम्मीद मत करिए, अपने से कम्युनिकेशन पे ज्यादा काम करिए। आपको कहीं से मैंने एक टूल टेस्ट दिया है, एग्जैक्ट ऐसा ही कुछ टूल टेस्ट उस कंपनी में आएगा जो कंपनी के लिए मैंने ओपनिंग डाली थी, अहमदाबाद के लिए और पुणे के लिए। तो सभी लोग इस टूल टेस्ट को आज करेंगे, केवल इतना ही टास्क है, आराम से टूल टेस्ट को करना है, कल तक सबमिट करना है। और अगर टूल टेस्ट कर लिया तो समझिए कि आप डायरेक्ट उस कंपनी के लिए प्रोजेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और जिस कंपनी के दिया है यूनिकैड, इसमें भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें नहीं भेज रहा हूँ आपका रिज्यूमे, इसका टूल टेस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट इनको रीच आउट कर लीजिए। अब ये मत बोलिए कि मैंने टूल टेस्ट आपका कर रखा है, ठीक, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और उसके बाद उनको अप्लाई करके वहां भी शॉर्ट लिस्टिंग गेन कर सकते हैं। जिस कंपनी के लिए मैं आपका रिज्यूमे कल भेजने वाला हूँ, कैडब्रिक्स नाम है, कैडब्रिक्स में भी लगभग ऐसा ही टूल टेस्ट रहता है। तो आपका एक हिंट है, ये कर पाए तो वो भी कर लेंगे। तो कंप्लीट करके कल तक आराम से भेजिए। और कम्युनिकेशन के लिए जिसको जिसको मैंने बोला है, प्लीज काम करिए। अगर कम्युनिकेशन पे काम नहीं करेंगे तो पैकेज पे इम्पैक्ट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। नितेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी बोलिए। सर यन सर्कल का टूल टेस्ट सर कैसे रहेगा, कुछ आइडिया है सर? एन सर्किल का ज्यादा टफ नहीं रहता है, ज्यादातर वो कैट फाइल देते हैं, उसका 3D बनाना रहता है, नहीं तो फिर रेविट फैमिली में कुछ बनाने के लिए देंगे बस। ओके सर, आज मेरा ठीक है, इंटरव्यू हुआ था सर, उन्होंने लेयर का पूछा था मुझे अच्छा। थोड़ा सा, और सेंट्रल फाइल के कब है कब है फाइल के बारे तुम्हारा में। कब है तुम्हारा टूल टेस्ट वहां पे? सर उन्होंने ईमेल किया है, 9 को है। ठीक है, मैं 9। तुम्हें ना, मुझे कल आफ्टरनून मैसेज करना, एक दो लड़कों का नंबर दे दूंगा जिन्होंने टूल टेस्ट दिया है, तो तुम्हें वहां पे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सर मैं कल आ सकता हूँ क्या सर अकेडमी में, कहाँ पे? दोपहर में? कहाँ, ऑफिस में? यस सर। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओगे तो वहीं साथ में से तुम्हें दिखा दूंगा डायरेक्ट, ओके ठीक सर, है। कल आता हूँ। हाँ, 12 बजे से 3 बजे के बीच में आ जाना, ठीक है। ओके। ओके जी, प्रियंका आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ सर, बोलिए। एक्चुअली एक्सपेक्टेशन सैलरी पूछा किसी ने, तो कैसे क्या बताने कि देखिए फ्रेशर के इस लिए। इस हाँ, इसमें प्रियंका कई चीजें होती हैं। एक तो होता है फ्रेशर्स के लिए, होता है तो सिंपल होता है कि एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स। बट अगर आप एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, तो आप इंटरव्यू के अकॉर्डिंग बोलिए, सामने वाली कंपनी का स्टेटस क्या है, कंपनी बड़ी है,
उस हिसाब से हमें वैल्यू बोलना पड़ेगा। कंपनी छोटी है उस हिसाब से हमें बोलना पड़ेगा। जनरली इसका सही तरीका ये होता है कि आपको बोलना चाहिए कि सैलरी इज नॉट माई फर्स्ट प्रायोरिटी, आई जस्ट वांट टू एंटर माई सेल माई कैरियर इन द बीम इंडस्ट्री। सिंपल एंड श्योर आंसर होता है। इफ समवन फोर्स कि नो नो आई जस्ट वांट द नंबर्स, तो आप बता सकते हैं कि माई प्रीवियस सीटीसी वाज दिस वाज, इफ आई गॉट अप्रॉक्स द सेम सैलरी आई विल बी ओके विद दैट। ठीक है, ओके। तो ये आपके लिए एक बेहतर आंसर होगा। और हर केस के लिए अलग अलग हो जाता है। मान लीजिए किसी छोटी कंपनी में कर रही हैं, नो डाउट यू नीड टू गेट सम compromise। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर हायर कंपनीज, वहां पर को ऑटोमेटिक अच्छा पैकेज मिल जाता है। ठीक है, इसमें भी प्रियंका ओ- ना कम्युनिकेशन का रोल रहता है डियर, तो आप कम्युनिकेशन पे खूब हम्म, काम करिए। ठीक है। हाँ सर। ओके, समीर जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैंने ग्रुप पर मेरा पोर्टफोलियो सेंड किया है, क्या मैं वो ओके, कंपनी को शेयर कर सकता हूँ आप देखो आप? चेक कर लेता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट डाउट यहाँ पर किसी ने पूछा हुआ है तब तक, क्या बोलते हैं, सोहेल मलिक जी आप जल्दी से पूछ लीजिए। हेलो हेलो। सर, वो आपने जो पिछला प्रोजेक्ट दिया था आरसीसी का, हाँ हाँ। उस हाँ, उसमें जैसा जो बीम में स्टिरप्स प्रोवाइड करते हैं हम, तो एंड से 12/4 तक के वो स्पेसिंग कम रहता है उसका, और सेंटर में स्पेसिंग ज़्यादा रहता है। तो करेक्ट। वो कैसे प्रोवाइड करना है उसमें मुझे जो ऐसे ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हो ना बीम में। बीम में नहीं, बीम में देना है मतलब स्टिरप्स जो देते हैं हम। हाँ हाँ। हाँ वो अच्छा, उसका। वो ठीक ठीक, वो हम अभी कल के क्लास बताने वाले हैं। कुछ नहीं करना पड़ता है, 3 बार हमें स्टीरअप डालना पड़ेगा। जैसे तुम नंबर आप स्टीरअप डालते हो ना, तो स्टार्टिंग हाँ में हाँ। तुम्हें डालना पड़ेगा 5। ठीक है, अच्छा। फिर उसको मूव करके नीचे कर देना है, फिर से स्टीरअप्स लगाना है 10 मिडिल के लिए, फिर 5 कॉर्नर के लिए। 3 बार स्टीरअप डालना पड़ता है। ये लेंथ वाइज फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। यस यस, उसमें काम बढ़ जाता है। अभी क्यों नहीं बताया, क्योंकि अभी आप सीख रहे थे ना, कंफ्यूज हो जाते कि ये कहाँ से अच्छा। आ गया। हाँ ठीक हाँ। है, बताऊंगा, डोंट वरी। एंड दूसरा सर, कॉलम का जो बार हम जैसा नीचे एक्सटेंड करते हैं फुटिंग में, हाँ हाँ। 300 mm या 1 फीट जो भी लेना है, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम फुटिंग पे सेक्शन लेते हैं, बाद में उसको सेक्शन में जाके बार को नीचे एक्सटेंड करते हैं, बट वो यस, जिस डायरेक्शन में अपने को चाहिए उस डायरेक्शन में एग्जैक्ट आता नहीं, मतलब कंफ्यूजन होता है उसमें। तो उसका कुछ इजी वे है क्या? इजी में क्या होता है, इसका प्लगइन तो होता है जो डायरेक्ट ही प्रोवाइड करता है, बट क्योंकि अभी आपके पास प्लगइन होता नहीं है, तो हाँ। टफ वे तो यही है अभी के लिए। इसीलिए मैंने मैनुअली। बोला था ना कि पूरे बिल्डिंग में नहीं करना है आपको, आप हाँ सिर्फ हाँ। 1 2 3 कॉलम में दिखा दीजिए बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। लिखा मैंने किया है 1 2 कॉलम में, बट वो क्या एक हाँ, ही डायरेक्शन में बेंड हो रहा है सब। नहीं देखो, 3 करके तीनों की ट्रांसपेरेंसी ऑन कर दो, तो 3 हाँ दिखने लगेंगे। बाकी हाँ भरे हुए हैं तो अंदर तो दिख ही नहीं रहा क्या मॉडल में है। हाँ हाँ हाँ। ठीक ओके। है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है पोर्टफोलियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो दोस्त, पोर्टफोलियो आपका अच्छा है। ठीक है, तो अप्लाई करिए समीर आराम से, और थोड़ा फास्ट अप्लाई करिए। जी सर, अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन पोर्टफोलियो ऐड नहीं कर रहा मेरे लिए, सिर्फ नहीं आप करिए, नहीं रिज्यूम तो ऐड कर रहा था। नहीं नहीं, आप पोर्टफोलियो करेंगे तो रिस्पॉन्स आएगा। ओके ओके। ओके जी, शिवम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? असल मुझे मेरे प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ पूछना था। हाँ जी बोलिए। जैसे उसमें क्या करो, मैं तो बिम में ही बना रहा हूँ, तो एक हम लोग एक अर्बन सिटी का प्लान दिखा रहे हैं हम लोग, कि ठीक पहले है। ऐसा था, उसके बाद हमने बीम इम्प्लीमेंट करके हमने एक विजुअलाइजेशन बनाया एक अर्बन सिटी का। तो उसका एक सेक्शन हम लोग दिखा रहे हैं। तो ठीक है। उसमें कुछ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, एक रेसिडेंशियल डुप्लेक्स जैसे हम लोग बनाया था चौधरी अपार्टमेंट, वैसे चौधरी डुप्लेक्स वैसा टाइप का है, और एक हॉस्पिटल, एक स्कूल एंड एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और जो अभी हम लोग स्ट्रक्चर में वेयर हाउस बना रहे हैं वो काइंड ऑफ फूड स्टोरेज टाइप का हम लोग बना रहे हैं। तो यही सब है। बढ़िया। तो सर मैं सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्या मतलब हम लोग एक ही फाइल में बना सकते हैं? नहीं कर पाए। सभी अलग अलग फाइलों में बनाइए, फिर हम्म। इंसर्ट में जाके रेविट लिंक हाँ लिंक सर, करके सब फाइल को एक कर दीजिए। वही मुझे एक बार आ नहीं रहा है मेरे को, मतलब मैंने बना हुआ तो ठीक सारा है। चीज है ही अलग अलग, बट हाँ मैं हाँ। सोच रहा हूँ कि एक एक में वो कैसे लाऊं और अलाइन कैसे अगर करूँ उसको लाके। देखिए, अगर स्क्रीन शेयर करना हो तो कर दीजिए, मैं अभी दिखा दूं। अभी तो सर फिर ठीक है, वो नहीं है वैसे बना कल हुआ दिखा कुछ। दो, सब बना ठीक लो, है सर। कल मुझे हाँ दिखा देना, 2 मॉडल में ऐड करना बता दूंगा क्लास में। ठीक है सर, बस वो मुझे लिंक बता दिएगा हो जाएगा कैसे हो करके जाएगा। अलाइन करते हैं, और बस ओके, वगैरह बाकी वो सब है। डोंट वरी, ठीक है सर। वो हो जाएगा, तुम आराम से बनाओ। ओके ठीक है। सर। ओके जी, सेन साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मिस्टर सेन। हाँ सर, ये मुझे ये पूछना सर, अभी रेविट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया क्या सर क्लासेस? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी और भी बहुत अभी कुछ है। अभी डिटेलिंग से और बचा हुआ है। ठीक है, और 1 2 मॉडल और बनाएंगे अभी हम लोग, एक पेट्रोल पंप की डिटेलिंग बनाएंगे हम लोग। अभी 1 हफ्ता तो पूरा जाएगा आराम से।
एक्चुअली सर क्या हुआ कि मेरी अभी पोस्टिंग वही वही उसी प्रोजेक्ट के नाम से मेरी ना टेम्पररी ट्रांसफर हो गया साइट पे। मुझे वहाँ सैटरडे संडे भी मुझे ऑफ नहीं है अब। मुझे साइट पे ही हम्म। रहना है मुझे, और बहुत सुबह से लेकर रात तक आते हैं, क्योंकि उनको माइलस्टोन कंप्लीट करना है जून तक। तो मैं ना अभी पिछले 3-4 दिन से क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रहा था इस चक्कर पे मैं। तो नहीं। क्लास मिस ना होकर के इसलिए प्लान जाना चाहते थे कि आगे कैसे हाँ। क्लासेस बढ़ेंगे करके, नहीं, क्योंकि ये एमईपी ये मुझे एक नहीं हफ आता। ये एक हफ्ता आपका रेव स्ट्रक्चर को जाएगा। उसके बाद एमईपी लेंगे। देवयानिक सर लेते हैं एमईपी। अभी दिव्यानिक सर का एक बैच चल रहा है, तो पता नहीं 2 बैच ले पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स करते हैं और वो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो अगर उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा तो अभी स्टार्ट हो जाएगा एमईपी। अगर उनके पास कोई प्रोजेक्ट, मैं एक कल परसों क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उनके पास कोई प्रोजेक्ट होगा बड़ा, तो फिर क्या बोलते हैं, हो सकता है हमें टेकला स्टार्ट करना पड़े। लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, अगर उनसे संभव होगा तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे रेविट एमईपी के बाद। स्कैन टू बीम भी होगा और एमईपी भी, दोनों ही दिव्यानिक सर करेंगे। सर जैसे मेरा जैसे होता है कि साइट से मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, अगर मेरे क्लासेस मिस होते हैं तो मुझे दूसरे बैच में आप एडजस्ट कर सकते हो उस चीज़ के लिए? देखो क्या होता है बेटा, कि अगर तुम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बोलोगे तो मैं कर सकता हूँ। सब चीज के लिए करने में एक दिक्कत होती है ना सेन की, आपका तो जेन्युइन रीजन है, लेकिन अगर उदित ने जेन्युइन रीजन ना बोल के कुछ और बता दिया, मना कैसे करेंगे? नितेश ने कुछ और बोल दिया, फिर हम मना कैसे करेंगे? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर द सीरियस कंसर्न हम लोग एक रूल लगाते हैं कि फॉर एनी सॉफ्टवेयर, जैसे आपने बोला कि रेविट स्ट्रक्चर हमारा सर कवर करा दीजिए, रेविट एमईपी करा दीजिए, तो हम कोई भी उसके लिए कुछ भी नहीं बोलते, आराम से ज्वाइन कर लो। रेविट आर्किटेक्चर करा देते हैं पूरा पूरा, ठीक है। लेकिन पूरा नहीं कराते हैं, बस इसका रीजन एक ही है कि कोई तो जेन्युइन है, कोई तो आलस कर रहा है, क्लास नहीं कर रहा है, फिर वो बैच पे बैच चेंज कर रहा है, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ रहे हो? तो एक लोग की सीट खराब होती है। इसके लिए फिर हम लोगों ने एक रिन्यूएबल चार्ज रखा, जो कि बहुत नॉमिनल 5,000 का रिन्यूएबल चार्ज रखा है। अब जो सीरियस है उसके लिए तो भाई करना ही है, जो सीरियस नहीं है उसको हम लोग चाहते नहीं को एंटरटेन किया जाए। ठीक है, तो बस यही ओके। रहता है सीन। बाकी तो तुम्हें सब पता ही है अपना रूल। ठीक है। तो ओके। ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई पर्टिकुलर पोर्शन आपका छूटता है आप बोल दीजिएगा, हम करा देंगे। पूरे के लिए देखो कमिटमेंट मत लो, क्योंकि एक को किया तो सबको करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, चलेगा। ठीक है, सी यू टुमारो।